مریم نواز، آپ کے لیے میں اے آئی لیب بنا رہی ہوں۔ میں جاپان اور چائنا گئی، وہاں میں نے دیکھا کہ بچے اے آئی پڑھ رہے تھے۔ یہاں بھی بچوں کے لیے میں اے آئی بنا رہی ہوں اور اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں دن رات محنت کر کے۔ یہ مریم نواز کا بیان ہے کہ میں چائنا گئی، میں جاپان گئی اور وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ جو چائنا کے بچے ہیں، جاپان کے بچے ہیں، وہ اے آئی کر رہے ہیں، اے آئی کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے پاکستانی بچے وہ اے آئی کے اندر آگے نہیں بڑھ رہے اور ان کو وہ سہولت کاری نہیں دی جا رہی، ان کو وہ پلیٹ فارم نہیں دیا جا رہا کہ وہ آگے بڑھ پائیں یا کوئی بڑا کام پاکستان کے اندر اٹھے ہوئے ان دو خاندانوں کے اٹھے ہوئے کر پائیں۔ کیوں نہیں کر پائیں؟ کیونکہ یہ دو خاندان پچھلے 40 سالوں سے اپنا سوچ رہے ہیں، اپنی فکر کر رہے ہیں، اپنے اقتدار، اپنے مفادات کا سوچ رہے ہیں، اس لیے نوجوانوں کو موقع نہیں ملتا۔ آپ نے یہ بات ہی کی مریم نواز کہ آپ نے کہا کہ میں چائنا گئی، میں جاپان گئی، میں نے جا کے وہاں دیکھا کہ وہاں جا کے بچے اے آئی کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں اور مختلف کاموں کے اندر وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے صرف اے آئی کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، مختلف پلیٹ فارم، مختلف کاموں کے اندر وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کو سپورٹ ملتی ہے ان کی حکومت کی طرف سے۔ اور جو ہمارے ملک کے اندر حکومت بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے ملک کے اندر جو دو خاندان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے پاکستانی نوجوانوں کو کوئی موقع نہیں ملتا۔ آج آپ پاکستانی سیاست اٹھا کے دیکھ لیں کہ آج آپ کو پاکستانی سیاست کے اندر کوئی نوجوان نظر آئے گا؟ یہاں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نوجوانوں کی جو ووٹنگ کی رائٹ ہے، جو ووٹنگ کا ان کا رائٹ ہے، اس کو جو 18 ایئر سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کو کم کر کے 25 ایئرس تک لے آیا جائے اور 25 ایئر سے اس کو سٹارٹ کر دیا جائے۔ تو جب آپ نوجوانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی کوئی پاکستان میں اہمیت نہیں ہے، تو پھر نوجوان آپ کے پر کیسے یقین کریں گے؟ نوجوان آپ کے پر ٹوکیں گے، نوجوان آپ سے سوالات کریں گے کہ آپ نے پچھلے 40 سالوں میں ان دو خاندانوں نے نوجوانوں کو کیا موقع فراہم کیے کہ وہ اس ملک کے لیے اپنا نام روشن کریں اور وہ آگے بڑھ پائیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ ان دو خاندانوں نے پچھلے 40 سالوں سے نوجوانوں کو کیا موقع فراہم کیے۔ آج مریم نواز یہ ایک اسپیچ کر رہی ہے، خطاب کر رہی ہے اور آرام سکون سے بول سکتی ہے کہ نوجوانوں کے لیے ہم اے آئی لیب بنا رہے ہیں۔ میں چائنا گئی، میں جاپان گئی، میں انڈونیشیا گئی، میں مختلف دورے کر کے آئی اور میں نے وہاں دیکھا کہ بچے اے آئی میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ صرف اے آئی کے اندر نہیں، مختلف پلیٹ فارم کے اندر بچے، مختلف ممالک کے بچے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ بات حقیقت ہے اور یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ جو پاکستان کا نوجوان ہے، جو پاکستان کا ایک نوجوان ہے، جب وہ اعلیٰ ڈگری لے کے نکلتا ہے، اعلیٰ تعلیم لے کے نکلتا ہے اور جب وہ جاب اپلائی کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں آگے سے اس کو کیا حکم ملتا ہے کہ یہاں پہلے سے ایک ریٹائرڈ آفیسر بیٹھا ہوا ہے، آپ کی جگہ ہم نے ایک ریٹائرڈ آفیسر کو جس کی عمر ہو گئی ہے، جس سے اپنی عمر گزار لی ہے، اس کی جگہ، نوجوان کی جگہ جو اعلیٰ تعلیم لے کے آیا ہے، اعلیٰ ڈگری لے کے آیا ہے اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے، اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے، اس کو جگہ نہیں دی جاتی اور ریٹائرڈ آفیسر کو اس کی جگہ کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے، تو میرے نوجوان مایوس نہیں ہوں گے؟ کیا میرا نوجوان آگے بڑھ پائے گا اس طرح؟ کیا میں اور میرے جو نوجوان ہیں، میرے ساتھی اور میرے ساتھ کے نوجوان، کیا وہ اس ملک کے اندر اپنا مستقبل دیکھ سکتے ہیں؟ آج بڑی تعداد کے اندر نوجوان ملک چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ دو خاندان بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس ملک کا امن تباہ کر دیا ہے، انہوں نے اس ملک کا امن برباد کر دیا ہے اور ان کے اٹھے ہوئے کسی کا مستقبل پاکستان میں آپ صحیح نہیں کر سکتے اور صحیح راستے پہ لا کے کھڑا نہیں کر سکتے، کیونکہ نوجوان جانتا ہے کہ یہ دو خاندان اور یہ ایک نئی نوجوانوں کی نسل ہے جن کا دماغ آپ سے 100% تیز ہے اور آپ ان کے دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو نوجوانوں کو ان کے حقوق، ان کے رائٹ ملنے چاہیے اور نوجوانوں کو اپنے حقوق، اپنے رائٹ لینے کے لیے نکلنا پڑے گا۔ اور بلکہ میں مریم کو یہ کہہ رہا تھا، یہ راجہ صاحب بھی کھڑے ہیں اور میں نے کہا کہ دیکھو مریم، یہ میرا دل چاہتا ہے کہ الیکشن میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ، تو میں شہباز شریف صاحب، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو کہوں کہ آزاد کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دیں، نواز شریف کو۔ یہ آپ نے دیکھ لیا اس بگوڑے کی تقریب جو کشمیر کے اندر کھڑے ہو کے پہلے گلگت بلتستان کے الیکشن مہم کے دوران یہ جا کے گلگت عوام سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا کیا اور آپ بھی اس کے قصوروار ہیں، جب مجھے نکالا جا رہا تھا کہ آپ نے منہ کے اوپر ٹیپ لگا کے سائڈ کونے کے اوپر کیوں بیٹھ گئے؟ اب جب یہ کشمیر کے اندر الیکشن کمپین کرنے کے اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی امرا کے ساتھ اور بیٹی کے میاں کے ساتھ جب یہ جا کے وہاں پہنچا، آگے کشمیری کھڑے تھے، کشمیریوں کو کہتا ہے کہ اگر پی ایم لین کی حکومت بنتی ہے کشمیر کے اندر تو میں
लेला वज़ीर आज़म जो अमेरिका का गुलाम है, जो डोनाल्ड ट्रंप का पालतू कुत्ता है, मैं उसको बोलूँगा कि मुझे कश्मीर का पीएम बनाया जाए और सारी ज़िम्मेदारी मेरे हवाले की जाए। अभी तक इसका ख्वाब, इसके ड्रीम्स पूरे नहीं हुए। इनका लूटने का ख्वाब अभी तक पाकिस्तान के अंदर बैठे-बैठे पूरा नहीं हुआ। इन्होंने मज़ीद प्लानिंग बनाई हुई कि हमने मज़ीद अब कश्मीरियों को लूटना है, हमने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को लूटना है, हमने फेडरल हुकूमत भी ली हुई है, हमने पंजाब हुकूमत भी ली हुई है, सिंध के अंदर ज़रदारी ख़ानदान बैठा हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ज़रदारी ख़ानदान बैठा हुआ है, बलूचिस्तान के अंदर ज़रदारी और पीएम लैन शरीफ ख़ानदान मिल के हुकूमत कर रहे हैं। और अब ये नवाज शरीफ जाके कश्मीर के अंदर कहता है कि मेरे हवाले हुकूमत की जाए और मैं कश्मीर का पीएम बनना चाहता हूँ। अब इसकी ये औकात रह गई है। अब कश्मीरियों को ये देखना बाकी रह गया है कि एक और नौसत हमारे ऊपर आए। पहले कश्मीरी अपने हकूक, अपने हक मांग रहे हैं, उनको उनके हकूक, उनके रायती मिल ले। एक और ऊपर से ऑफर आई है कि मुझे कश्मीर का पीएम बना दिया जाए। आपकी कोई औकात नहीं है कि आप कश्मीर की नुमाइंदगी करें। आप होते कौन हो? आपने मुल्क की पिछले 40 सालों में क्या हालत कर दी है कि अब आप कश्मीर का पीएम बनना चाहते हैं और कश्मीर के ऊपर अपनी हुक्मरानी करना चाहते हैं, हुक्मरानी चमकाना चाहते हैं कि कश्मीर का मैं पीएम बनना चाहता हूँ। और अगर पीएम लैन कामयाबी हासिल करती कश्मीर के अंदर तो मैं शहबाज शरीफ को पैगाम दूंगा कि मुझे कश्मीर का पीएम बनाया जाए। ये बगोड़ा नवाज शरीफ बात कर रहा है जो 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर बड़ी तादाद के अंदर यास्मीन राशिद जो जेल के अंदर 4 साल हो गए बंद है, एक कैंसर की मरीज़, उसने कोई कंपेन नहीं की और कंपेन की है बगैर। और नवाज शरीफ ने कंपेन की इलेक्शन से पहले, उसको हराया और फिर ये फॉर्म 47 की पर 3 बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो रह चुका है उसको फॉर्म 47 की पर जीतना पड़ा, उसको फॉर्म 47 के पर जितवाया क्या। फिर हरीपुर के अंदर एक पीटीआई का जो कि कोई नहीं जानता था कि पीटीआई का कैंडिडेट है और उससे पहले उस बंदे को कोई नहीं जानता था, इमरान खान ने उसको खड़ा कर दिया। इमरान खान ने उसको हरीपुर में खड़ा किया और नवाज शरीफ भी उसके मुकाबले में खड़ा हुआ। फिर नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ? हरीपुर के अंदर इसको फॉर्म 45 भी नहीं मिला, ना फॉर्म 47 भी नहीं मिला, इसको सीडीआर मिली। और जो ये ख्वाब देख के आया था कि मैंने पाकिस्तान का पीएम बनना है छोटी बार, वो ख्वाब चकनाचूर हुआ, वो ख्वाब ज़मीन पोश हुआ। पाकिस्तानी कौम ने बड़ी तादाद के अंदर 8 फरवरी को निकल के बताया कि नवाज शरीफ तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हें अगेन पाकिस्तान का छोटी बार वज़ीर आज़म बना देंगे, तुम्हारे हवाले फिर हम पाकिस्तान कर देंगे और तुम आराम सुकून से लूट मार करोगे। अब तुम्हारा वक्त ख़त्म है। और जो आज इक़्तिदार के ऊपर बैठे हुए ना, ये जितने भी रह गए हैं, शहबाज शरीफ रह गया, आसिफ अली ज़रदारी रह गया, बिलावल भुट्टो रह गया है, मरियम नवाज़ रह गई है, ये इनका आखिरी टाइम चल रहा है और ये इनका आखिरी वक्त है। इनको भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। जिस तरह नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है, इनकी भी सियासत ख़त्म हो गई है। आज आप फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में किसी भी कोने में एक हल्के में करवा के देख लें, आपको लग पट जाएगा कि इनकी असल औकात, इनकी असल वैल्यू क्या है। ये किसी हल्के से इलेक्शन नहीं जीत सकते। ध्यान से बात सुनना। जहां पर सूबा पंजाब में जहां पर नवाज शरीफ की हुकूमत है, वहां पर जो सूबा पंजाब की हदूद खत्म हुई तो सड़क भी खत्म हो गई, सफाई भी खत्म हो गई, तरक्की भी खत्म हो गई, ट्रांसपोर्ट भी खत्म हो गई। तो फर्क क्या है मेरे भाइयों? फर्क क्या है? फर्क को समझो। फर्क है नवाज शरीफ, फर्क है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ये आपने जाली वज़ीर आज़म जो पंजाब के अंदर बैठी हुई है, उसका एक और फ्रॉड आपने देख लिया। कश्मीरियों के साथ आप ये फ्रॉड करना पहुंच गई है। पहले पंजाबियों के साथ फ्रॉड करती थी, वहाँ खड़े होकर तकरीबात करती थी, स्पीचेस करती थी, पंजाबियों को बेवकूफ़ चुंटियाँ बनाती थी। क्योंकि जाली वज़ीर आज़म, जब आप जाली लोगों को बिठाते हो इक़्तिदार के अंदर, तो वो फ्रॉड ही करते हैं, कभी वो हक़ के ऊपर बात नहीं करते। आप ये कश्मीर में जाके बता रही कश्मीरियों को कि आपने पीएम लैन को वोट देना है, पीएम लैन की पंजाब की हुकूमत देख लें। और आप दूसरी वीडियो के अंदर जो मैंने वीडियो क्लिप आपके सामने रखी है, आप देख लें कि पंजाब के अंदर अभी कुछ दिन पहले और अभी भी बारिशें हो रही हैं, बारिश हुई, पानी 2 करोड़ रुपए का इन्होंने 2 बिलियन रुपीस का इन्होंने अंडरपास पंजाब के अंदर रोड के अंदर बनाया। वो अंडरपास को सिर्फ 2 महीने हुए हैं, वो पानी के अंदर डूब गया और वो पानी उसको सर्वाइव कर नहीं पाया, वो पानी को निकाल नहीं पाया। ये एक जाली वज़ीर आला जो पंजाब के अंदर घुस के बैठी हुई है और पंजाब के ऊपर बैठ के हुक्मरानी कर रही है। और एक तरफ बारिश होती है, शेखुपुरा हो गया, फैसलाबाद हो गया, मुल्तान हो गया, जो जगह गुजरवाला हो गया, जो जगह आपने उठा के रौर हो गई, जो जगह आपने पंजाब में उठा के देखनी है, एक बारिश हुई है और तबाही बर्बादी हर जगह आपको तबाही बर्बादी नजर आएगी। लेकिन ये कश्मीर पहुंची हुई हैं मैडम साहब चीफ मिनिस्टर, और वहाँ जाके कश्मीरियों को कह रही हैं कि अगर आपने पंजाब जैसा कश्मीर चाहिए तो आपको कश्मीर के अंदर पीएम लैन को वोट करना पड़ेगा।
کا। اور दूसरी तरफ मरीम नवाज सिंध के ऊपर भी तनकीद करी कि सिंध वाले कैसे आ गए, पीपी आज कश्मीर के अंदर आके कंपेन कैसे कर रहे हैं, किस मुंह से ये कंपेन कर रहे हैं, इनको अपने गिरबानों में देखना चाहिए। सिंध की हालत आप उठा के देख लें। मैं सीधी एंड क्लीन एंड क्लियर बात कर रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इनको हुकूमत हवाले की गई। ये गिलगित बल्तिस्तान का भी वही हाल करेंगे। आप सब्र करें, हौसला रखें और आपको जल्द मालूम होगा कि ये गिलगित बल्तिस्तान का भी वही हाल करेंगे जो इन्होंने हाल कराची और सिंध का किया है। मुकम्मल तौर के पर इन्होंने कराची और सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया है और अब ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी हुकूमत लेके बैठ गए हैं और वहाँ जाके अब ये हुकूमत करेंगे, पैसा लूट मार करेंगे, दुबई में अपने कारोबार बनाएंगे, अपनी फ्लैटें बनाएंगे, बिजनेस बनाएंगे, अपने बच्चों का पेट पालेंगे और सारे जितने भी इनके मेंबर्स हैं वो भी लूट मार मिल के इनके साथ करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान को कोई भी उनकी मूवमेंट नहीं देंगे। वहाँ इन्होंने इनको हुकूमत बना के दे दी गई है फॉर्म 47 के ऊपर। और कश्मीर भी अब ये इलेक्शन कंपेन करने के हैं कि हम कश्मीरियों को अगर सिंध जैसा सूबा चाहिए, कराची जैसा सूबा चाहिए, सिटी चाहिए, तो आपको वोट करना पड़ेगा, पीपल पार्टी की हुकूमत बनानी पड़ेगी और आपको निकलना पड़ेगा। ये दोनों ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान और PMLN ख़ानदान और ये PP ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान, ये दोनों आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। पाकिस्तानियों अपनी आँख खोलो कि इससे पहले देर हो जाए। वो बंदा जो जेल के अंदर बैठा हुआ है वो इनके खिलाफ जंग कर रहा है, वो आपके मुस्तकबिल के खिलाफ जंग कर रहा है, वो आपके मुस्तकबिल के लिए जंग, इनसे मुकाबला कर रहा है, वो आपकी आने वाली नस्लों के लिए जंग लड़ रहा है इन दो ख़ानदानों से। आप जब तक इन दो ख़ानदानों को एक्सपोज नहीं करेंगे, इनकी असलुकात, इनकी असल वैल्यू नहीं बताएंगे, इनकी असलुकात, इनकी असल वैल्यू नहीं पता चलेगी। कश्मीरियों को चाहिए कि आप PTI नहीं खड़ी इलेक्शन में, तो कश्मीरियों को चाहिए कि वो इलेक्शन के दिन ना निकले अपने घर से और ना निकले और इनको पैगाम दें कि PTI भी नहीं है, इमरान खान भी नहीं है, तो हम इलेक्शन दिन हम नहीं निकलते, क्योंकि इमरान खान भी कश्मीर इलेक्शन के अंदर इमरान खान नहीं खड़ा, ना PTI खड़ी है। तो कश्मीरियों को चाहिए कि वो अपने घरों से ना निकलें। वोट डालने के लिए वोट उनका हक है, लेकिन अभी उनसे वोट का राइट छीना गया है। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तीन पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तीन लीडर है इमरान अहमद खान नियाजी, जब आपने उसको दबार के साथ लगा दिया है और उसके ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं, जुल्म और ज़बर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने PMLN और पीपल पार्टी को मुकम्मल खुलेआम एक मैदान दिया हुआ है कि मुकाबला करो, और PTI को आपने एक असल शेर का बच्चा है उसको आपने साइड पे कर दिया है। और इन दो लीडर्स को कह रहे हैं, इन दो बंदरों को कह रहे हैं कि आपने मुकाबला करना है। तो मुझे ये बताएं कि कश्मीरियों, आप निकलोगे अपने घर से, आपको अपने घरों से नहीं निकलना चाहिए, अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके वोट का पाकिस्तान के अंदर कोई राइट नहीं है और ये आपके वोट को नहीं मानते। तो कश्मीरियों को चाहिए कि अपना फैसला सुना दें। कश्मीरियों को चाहिए कि आप मुकाबला करने का वक्त आके, जिस तरह आप 2 महीने मुकाबला कर रहे हैं, अपने हकूक़ अपने राइट पे खड़े हैं, इसी तरह आपने अपने हकूक़ अपने राइट पे खड़े होके इन दो ख़ानदानों को एक्सपोज करना है। इनके खिलाफ आपने जंग के मैदान में जंग लड़नी है, मुकाबला करना है। ये आपके नस्लों की जंग है, या आपके मुस्तकबिल की जंग है, ये मेरी माए बहनों के मुस्तकबिल की जंग है, ये मेरे और मेरे नौजवानों की जंग है, ये मेरे कश्मीरी बहन भाइयों की जंग है। तो आपने अपने मुस्तकबिल का फैसला आपके हाथों में है। आप निकलेंगे तो इनको उम्मीद होगी कि आवाम आज भी हमारे पीछे खड़ी है। आपने नहीं निकलना, और इनका ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि आवाम आज भी हमारे पीछे खड़ी है, ये सोच, ये समझ आपने इनकी माइनस करवानी है और इनको आपने माइनस करवाना है। इमरान खान ने इनकी पॉलिटिक्स माइनस करवा दी है जेल में बैठ के। बाकी काम मेरा और मेरी कौम का रह गया है कि हमने मिल के इनको माइनस करवाना है, और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर इनकी कोई जगह, इनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना, और इनका इन्ना व निल्ला ए राज़िऊन मुकम्मल तौर के पर करवाना है कि इनका पाकिस्तान पॉलिटिक्स में आने वाले दिनों में कोई मुस्तकबिल हमें नज़र ना आए और हमारी आने वाली नस्लें आराम सुकून से पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजार पाएँ।